بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کرنا ہے. کن اعمال سے دعا قبول ہوتی ہے؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال کریں جن سے دعا قبول ہوتی ہے. بھائی دیکھو حدیثوں میں تو یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہے، اللہ آپ کی روزی حلال ہے، اور آپ کے جسم پہ حلال کمائی کا کرتا ہے، مطلب کپڑے آپ کے حلال کمائی کے ہیں، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. لیکن یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ دعا کی قبولیت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا وہی آپ کو مل جائے، بلکہ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ 3 طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو اس طرح سے کہ آپ نے جو کچھ مانگا وہ آپ کو اللہ نے جو کہ کو دے دیا. ایک وہ کہ اس کے بدلے میں دنیا میں آپ کو کچھ اور دے دیا، اللہ کمپنسیشن دے دیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں دنیا میں نہیں بھی ملا تو ایک حدیث پاک میں ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ وہاں ایک آدمی کو بلایا جائے گا، جب اللہ اسے اجر دے گا وہ کہے گا اللہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، تم مجھے جو اجر دے رہا ہے. اللہ یہی کہے گا کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھی دنیا میں ان کا بدلہ تجھے وہاں نہیں ملا، حکمت میں نہیں دے سکتا تجھے وہاں بدلا، اس کے بدلے میں نے تیرے لیے یہ توشہ اکٹھا کر رکھا تھا جو آخر میں تیرے لیے بنا دیتے. تو وہ ضرور کیا کریں اور اللہ کی حکمت کو بھی چھوڑ دیں. اس کی مشیت ہے کہ اسے کب کسے کیا دینا ہے. تو اگر ہمیں اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہوگا، دعا مانگنے کا اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگا میں دوں گا اور میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، بالکل مانگا کریں، لیکن اللہ پہ چھوڑ دیں، کب اس نے دینا ہے اسے پتہ ہے. قربانی کا گوشت اگر گھر پہ آئے مانگنے کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی مانگنے قربانی کا گوشت گھر پہ آئے تو کیا دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، اجازت ہے. قربانی کا گوشت ہے غریبوں کے لیے، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود جا کے بستیوں میں بانٹیں. یہ جو مانگنے والے گھروں پہ آتے ہیں نا، ان کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، یہ جو بے وجہ مانگتے ہیں نا لوگ، یہ قیامت میں اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ بھی ایک طرح کی بھیک کی ہے کہ آپ گوشت مانگنے جا رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا اگلے وقت کا ہے نا تو آپ پہ جائز نہیں ہے بھیک مانگنا. یہ نبی کی حدیث بتا رہا میں آپ کو. تو جو لوگ اگر گھر میں آپ کے گھی بھی ہے، مسالے بھی ہیں اور سب کچھ ہے، تو وہ اللہ آپ کو کیا گوشت نہیں دے گا؟ کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے یہاں تھیلی دے جائے گا. تو اس لیے مانگنے سے بچیں. سوال ایک دوسرے سے پانی پلانا ہو کہنا یہ الگ چیز ہے، لیکن بنا ضرورت مانگنا، قرض لینا امیر ہونے کے لیے یا اپنے کاروبار چلانے کے لیے بینکوں سے یا لوگوں سے قرض مانگنا، یہ بالکل ناجائز ہے اسلام میں، گناہ ہے. بلکہ نبی نے فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں نا، شہید جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور پھر دنیا میں بھیجا جاؤں پھر شہید ہوں، اتنا بڑا رتبہ ہے شہید کا. اور یہ فرمایا کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اس کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا رہتا ہے. اور اس حدیث سے مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرض جو ہے وہ گناہ ہے. وہ اسی وجہ سے گناہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر اگلے وقت کا کھانا آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو مانگنا نہیں چاہیے. افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ بھائی افضل ترین صدقہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ بھی آیا حدیث. اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کرنا، یہ بھی آیا. مطلب الگ الگ سچویشن میں اللہ کے رسول نے الگ الگ جواب دیے. اب ضرورت ہے اس ٹائم جہاد کی، قتال کی، تو بہترین صدقہ وہ ہوگا کہ اس ٹائم آپ اس کال پہ لبیک کرو. آپ کے پاس مال ہے تجوریوں میں اور امت جو ہے وہ پریشان ہے اور علماء دین یا ہمارے وقت کے خلیفہ آپ سے مال مانگے تو وہ بہترین صدقہ ہوگا. دیکھو جب ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ مال کی ضرورت ہے، تو انہوں نے جتنا مال دیا نا 3 بار دیا مال، بھرے ہوئے مال جو ہے وہ مال سے بھرے ہوئے، اور ایک ایک اونٹ کی قیمت جو ہے کئی لاکھ روپے کی آج. تو اس کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ اب عثمان کچھ بھی کرے اللہ کے یہاں پکڑنی ہوگی. تو اپنے مال سے انہوں نے اس ٹائم مدد کی دین کی. تو آپ مال اکٹھا کریں کوئی منائی نہیں ہے، لیکن جب دین کے لیے کال آئے تو فوراً اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کی راہ میں. یعنی حالات کے حساب سے. ہاں الگ الگ جی. نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی کیا نیت؟ ان کا سوال یہ نماز اگر قضا ہو جائے تو کیا نیت ہے؟ یا نماز تو قضا ہے ہی نہیں اسلام میں. دیکھو میں بار بار یہ بات بتا چکا، اگر اسلام میں نماز قضا ہوا کرتی تو عورتوں کی حیض کی نمازیں معاف نہ ہوتی، بلکہ روزوں کی طرح انہیں بعد میں رکھنا ہوتا. دیکھو 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نکلی ہے، 2-3 روایتیں ہیں. ایک بار تو فجر کی نماز
तमाम साहबा सफ़र में आ रहे थे, सोते हुए रह गए। हुजूर ने हज़रत बिलाल को खड़ा भी किया पहरेदारी पे कि भाई टाइम होते सबको उठा देना, फजर पढ़ेंगे। लेकिन जब टाइम हुआ तो हज़रत बिलाल की भी आँख लग गई, क्योंकि अल्लाह ने एक हमें ये ऑप्शन देना था कि भाई तमाम कोशिशों के बाद अगर आप सोते रह जाएँ तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ते उठते ही हुजूर ने जब आँख खुली तो टाइम निकल चुका था, लेकिन हुजूर ने सबको वज़ू कराया और उसके बाद जमात कराई। नमाज क़ज़ा जो हुई थी उसकी नमाज की जो है जमात कराई हुजूर ने। तो इसलिए क़ज़ा नहीं है, बल्कि जो टाइम आपकी आँख खुले या आप पढ़ना भूल जाएँ तो याद आती है आपको नमाज़ पढ़नी है, वही आपकी नमाज हो, क़ज़ा नहीं हुई आप तमाम कोशिशों के बावजूद। अगर आप सोच के सोएंगे तो मैं तो 10 बजे पढ़ लूँगा, वो ना जाएगा, वो क़ज़ा हो गया। तो नियत आपको क़ज़ा ही करनी है अगर आपने जानबूझ के क़ज़ा किया है, वैसे इस्लाम में क़ज़ा नहीं है। हाँ भाई, इनका सवाल यह है दुआए कुनूत अगर फित्रों में पढ़ना भूल जाए तो क्या नमाज जो है हो जाएगी या दोहरानी पड़ेगी? भाई अगर आप भूल गए और उसमें आपने बाद में आपको याद आया तैयात में, तो आप सजदा सौ कर लें, आपकी इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल ही भूल गए तो आपको वितर दोहराना चाहिए, क्योंकि वाजिबात में से। हाँ, वो बिल्कुल। इनका सवाल यह है वितरों में दुआए कुनूत के बदले 3 बार कुल अल्लाह पढ़ना, कुल अल्लाह हो या कोई और भी सूरत वो दुआ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुनूत जो है वो दुआ ही है, तो आप कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं, इजाज़त है, लेकिन तब तक जब तक आपको याद ना हो जाए। अगर आप सारी उम्र 3 बार कुल अल्लाह पढ़ते रहे तो आप गुनाहगार होंगे, आपको दुआ याद करनी चाहिए। हाँ, ये होता है जैसे ये कहते हैं हमारी नमाज पढ़ तो टाइम निकल गया, हम सुबह उठे और ये कहा जाता है सूरज निकल रहा है तो नमाज ना पढ़ें, 20 मिनट बाद नमाज पढ़ें। तो मेरा मकसद भी यही है कि 20 मिनट गुजरने के बाद नमाज पढ़ें। आप ऐसा ना हो कि आप ऐसा जो मकरूह टाइम है उसमें आप सजदा नहीं कर सकते, उसमें नबी ने मना फरमाया है। सवाल ये है कि जैसे अपने देखा कि पिछले दिनों स्वीडन में कुरान शरीफ की बहुमती हुई या कुछ दिनों पहले डेनमार्क में हुजूर इस्लाम की शान बहुमती, तो उस पर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ रहते हुए क्या रद्दमल करना चाहिए? इनका सवाल यह है कि जहाँ कुरान की बेहुरमती हो रही है हमारा रद्द अमल क्या हो? भाई एक तो आपका रद्द अमल सबसे पहले तो दुआ हो, सब्र और सलाह से मदद चाहने को कुरान आपको प्रमोट करता है। दूसरे आपको एजुकेशन करना चाहिए, खामोश एजुकेशन, किसी किस्म के कोई नारे ना हो, तख्तियों पे लिखा हुआ हो कि ये हमारे रसूल का कलाम है और इसकी बेहुरमती की जा रही है, इसके बारे में लोगों को जगाना चाहिए, लेकिन खामोश। ऐसा ना हो धारा 144 लगी हुई हो, आप निकल जाए और आपको गिरफ्तारी देनी पड़े, या आपके बीच में इस तरह के गैर संजीदा लोग हों जो नारेबाजी करें और इस तरह का मुल्क का हालात बिगाड़ना। अगर पढ़े लिखे लोग हैं, तख्तियों पे लेके अपना मामला चलते हैं, तो आप यकीन करें कोई नहीं आपको रोकेगा। आप इस तरह लाइन बना के चलें, जुलूस की शक्ल में नहीं, बल्कि लाइन बना के। हमारे जो उस्ताद हैं तारिक अब्दुल्ला साहब, उनका मैंने देखा है, जो उनके लोग निकलते हैं जो खिदमत खल्क के लिए, तो वो 2-2, 3-3 आदमी एक रो में होते हैं, लंबी रो चलती है उनकी, और तख्तियों पे लिखा होता है कि मानवता की सेवा करें, या जो भी कुछ उनके होते हैं स्लोगन, लेकिन ना वो जुलूस निकालते हैं किसी किस्म का, ना वो शोर मचाते हैं। ये जो तरीका है ना खामोश चलने का, इसमें ना कोई आपको रोकेगा और आपका एजुकेशन भी पूरा हो जाएगा, अल्लाह के यहाँ भी लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर उनकी सीधी धाराएँ लगा दी जाए और आप जो है वो और नई परेशानियों में खड़े हो जाए और ईमान आपका कमजोर हो। 90,000 की एक दुकान ली है किस्त पर, हाँ, और उसकी रोज की किस्त 1,000 रुपये बनी है, हाँ। और 100 दिन तक नहीं है, क्या वो जायज़ है? अच्छा, इनका सवाल यह है भाई 90,000 की दुकान ली और उसे इंस्टॉलमेंट में ली और उसकी 100 दिनों तक 1,000 रुपये देना है, मतलब 1 लाख देना है 90,000, ये तो ब्याज है भाई। अगर 90 दिन तक आप 1,000 रुपये देते तो ये जायज़ था। आप 90 दिन तक 1,000 रुपये रोज़ देने के बाद अगर अपनी खुशी से 5-4 हज़ार रोज़ बढ़ा के देते, भाई तुमने 90,000 की दुकान मुझे किस्तों में दे दी और ये मेरी खुशी से 5,000 रुपये और या 10,000 रुपये और, वो जायज़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल ये था कि जब किसी से कर्ज लेते थे तो उसे थोड़ा बहुत बढ़ा के देते थे, तो खुद खुशी से बड़ा तय करके जो मामला होता है ना, वो सूद है। अगर तय करके आपने उसे 10,000 रुपया ज़्यादा दिया तो वो देने में भी आएगा और लेने में भी आएगा।
अच्छा, इनका सवाल ये है कि सूरह कहफ में 3 वाक़यात हैं, वो कौन कौन से हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुंतज़िर थे उन वाक़यात। असल में ये रोक डालना था अपने नबी का कि ये सच्चे नबी हैं, जो अल्लाह ने काफिरों को रोक डालना था कि ये तुम्हें सैकड़ों साल हज़ारों साल पुराने जो वाक़यात हो चुके वो सुना रहे जो तुम्हारी किताबों में दर्ज हैं। एक तो असहाब कहफ का वाक़या था उसमें, और एक खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और एक ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है। ये तीनों वाक़ये ऐसे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हज़ार साल पहले गुजरे थे। तो जब नबी ने ये वाक़यात उन लोगों को सुनाए हैं तो उन्हें ये उनमें जो ईमान में आने वाले लोग थे, अल्लाह को पता था कौन से आएंगे, तो वो ईमान में आ गए, लेकिन जिनके दिलों पे अल्लाह की तरफ से मोहर थी वो कुफ्र में ही रहे। तो आप कितने ही किसी को समझा लें, अगर अल्लाह की तरफ से उसके दिलों पे मोहर लगी हुई है, आप अपने रिश्तेदारों में देख लो जो आपसे बुरा मानने बैठे हैं, आप कितनी माफ़ी मांग लो, अगर अल्लाह की तरफ से मोहर है उसकी और उसकी इसी हालत में मौत होनी है तो वो किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा। तो जिन्होंने मानना था उन्होंने मान लिया था, जिन्होंने नहीं माना वो आज भी इन्हें किससे कहानियाँ समझते हैं। इस वक्त भी मांगना जायज़ है? इस वक्त भीख मांगना चाहिए, इसका सवाल ये है कि इस वक्त भीख मांगना चाहिए। अभी मैंने एक सवाल के जवाब में आपको बताया कि जब नबी से पूछा गया कि भीख मांगना कब ठीक है, तो नबी ने फरमाया जब तेरे पास अगले वक्त का खाना ना हो। अगर एक वक्त आगे का भी खाना आपके पास है, मान लो रात को आपने खाना खाया और सुबह का खाना आपके पास मौजूद है, तो आपके लिए भीख जायज़ नहीं है, वो उसी में आएगा जो मैंने आपको सुनाई, तो बिना ज़रूरत मांगना। और बिना ज़रूरत जो मांगे वो क़यामत में अल्लाह के हुजूर ऐसे खड़े होगा कि उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। इसलिए मांगने से बहुत बचना चाहिए, बहुत। कोई मजबूरी हो, आगे हो, जब मांगे, उस टाइम तो हराम भी हलाल हो जाता है। कुरान की आयत है। क्या इसी से मुतालिक सवाल है, क्या मांगने वाले को मना करना खिलाफ सुन्नत बात है? इनका सवाल यह है क्या मांगने वाले को मना करना खिलाफ सुन्नत है। हाँ भाई, रिवायतों में बात आती है कि नबी के दरवाजे पे कोई आता था तो सहाबा इकराम के दरवाजे पे कोई आता था तो मना नहीं करते थे, जो घर में होता था उसे दे देते। लेकिन यहाँ ये बात मैं बता दूँ आपको कि वो लोग कमर्शियल लोग नहीं थे मांगने वाले, बल्कि वो बहुत ज़रूरत में निकलते थे और अपने इज़्ज़त नफ्स को दबा के जब बाहर निकलते थे। हाथ फैलाना आसान काम थोड़ी था उन लोगों के लिए, तो इसीलिए उन्हें मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें ये हदीसें पता थी कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ये कहता है कि अगले वक्त का अगर खाना है तो आपको मांगना जायज़ नहीं है। तो उन लोगों का अगले वक्त का खाना नहीं होता था, तो इसलिए उन्हें मना नहीं किया जाता। आपके जो दरवाजे पर आते हैं वो लोग भिखमंगे हैं एक हिसाब से, उन्हें आप गुलाम मुनव्विस कर रहे हैं दे के, तो अगर हो सके दे दो, अगर वो हिसाब आपके पास नहीं तो प्यार से मना करो। क्योंकि कुरान की एक आयत ये भी है कि किसी को हंस के बोल लेना, अच्छे अखलाक से बात कर लेना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद किसी को तकलीफ पहुँचाई जाए। मान लो आप किसी को कुछ कह के भाई हट्टा कट्टा है, तू मांगता फिर रहा, उसके बाद आपने उसे 10 रुपये भी दे दिए, वो ईज़ा पहुँचाना है, आप उसे मना कर दो प्यार मोहब्बत से, भाई हमारे साथ अंदर चले जाओ, लेकिन आप किसी तरह के उसे तकलीफ ना पहुँचाओ। ये कुरान की आयत है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखो कि मांगने वाला जो है ना, वो अगर एक हदीस ये भी है कि साहिल अगर घुड़सवार पे भी आए तो उसे दे दिया करो, अगर आपकी हैसियत है तो ज़रूर दिया करो। लेकिन इस तरह के जो कमर्शियल लोग हैं, मैं एक वाक़या सुनाऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक आदमी मांग रहा था उनके दरवाजे के आगे, कुछ लोग खड़े थे, उसे दे नहीं रहे थे, तो हज़रत उमर ने ये बात कही कि भाई इसे दो। उन साहबा ने कहा कि जी अभी लेके गया था, मांग के गया था और हमने दे दिया था, फिर आ गया। तो हज़रत उमर ने दुर्रा मंगाया और उसे दुर्रे लगाए कि तू मुस्तहिक नहीं है, तू सौदागर है, तूने अपना धंधा बना रखा है।